ओम शांति। आज के साकार मूल्य 24 जुलाई 2021। आज के बाबा विशेष আমাদেরকে পুরুষার্থ করতে বলছেন। জিতে জি এই শরীর থেকে নিজেকে শরীর আর শরীরের সম্বন্ধ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার জন্য বলছেন। কেন কি আমরা অনেক বিস্তারিত হয়ে গেছি, আর বিস্তারিত হয়ে আমরা অনেক দুঃখ দেখতেছি, অনেক দুঃখ শুনতে পাই। তো এই জন্য বাবা বলতেছেন যে যাদের থেকে দুঃখ পাবা এখনো পাও নাই, তার আগেই তুমি কি করো, নিজেকে গুটিয়ে নাও। যাকে আমরা আমার আমার বলতেছি সেই জায়গা আমার বাবা, মিঠা বাবা, শুক্রিয়া বাবা করতে হবে। তখন আমরা ইজি থাকতে পারবো, আমাদের জীবনে অনেক সুখ থাকবে, খুশি থাকবে। প্রত্যেক লোক কি বলে জীবনে সুখ শান্তি লাগবে। তো সুখ শান্তির সাগর বাবা, ওনাকে স্মরণ করলে আমরা ওই সুখ ও শান্তির অনুভব করতে পারবো, যার মধ্যে কোনো স্বার্থ নাই। নিঃস্বার্থ সেবাধারী, উনি সেবা করতে আসছেন। দূর দেশের মুসাফির, ওনাকে মুসাফির বলা যায়, মানে যাত্রী। যাত্রী এই জন্য বলা হয়, উনি আসেন, নিজের কর্তব্য করেন আর ফিরে চলে যান। আমাদের মতন থাকে যান না, আমরা তো থেকে যাই, কর্ম করা শুরু করে দেই। তো বাবা কাজ করলেন, ফিরে চলে গেলেন। তো যাত্রাতে যায়, যাত্রা করে মানুষ ফিরে আসে। তো বাবাও আসেন, কাজ করেন আর ফিরে যান। তো বাবাকে আমরা অনেক সময় থেকে অনেক কিছু করে ডাকছি, তো বাবা আসছেন। তো বাবার ঠিকভাবে আমরা অধিকারটা নিতে পারি, বাবার সাথে যুক্ত থাকতে পারি, এইগুলো আমাদের খুব অ্যাটেনশন দিতে হবে। তো শুনি বাবার মহাবাক্যে বাবা আগে কি বলেছেন। बाबा बोलें, मीठे बच्चे बाप के पास आए हो अपनी जीवन हीरे समान बनाने। আমাদের জীবনটা হীরা মতন বানাইতে আসছি। बाप की याद से ही ऐसे जीवन बनेगी। বাবার স্মরণে থাকলেই আমাদের জীবনটা হীরা মতন তৈরি হবে। प्रश्न है, नई दुनिया में ऊंच पद के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है। নতুন দুনিয়াতে আমার উঁচু পজিশন হোক, তার জন্য এই সময় মুখ্যভাবে কি পুরুষার্থ করতে হবে, বিশেষ অ্যাটেনশন দিতে লাগবে। কি পুরুষার্থ? বাবা বললেন, मीठे बच्चे, जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, যেই পুরনো সম্বন্ধী কত দুঃখী করলো, अब उनके मोह जाल से बुद्धि को निकाल। मोह जाल থেকে বুদ্ধিটাকে বের করতে হবে। এক মুঝে याद करो, এক বাবারের স্মরণে থাকতে হবে। মোহ জাল থেকে বুদ্ধিটাকে বের করতে হবে। মোহটা হইল একটা মাকড়সারে যেমন জাল বানিয়ে দেয়, মাকড়সালকে দেখছেন কত বড় বড় জাল মতন তৈরি করে দেয়, আর সেই মধ্যে দেখবেন মাকড়সা ঝুলে থাকে, ফেসে যায়, বের হয় না। এই সংসার মিত্র সম্বন্ধী ওরকমই মাকড়সারে জাল মতন মানুষ ফেসে থাকে, তার থেকে বের হইতে চাইলেও বের হইতে পারে না। তো এই জন্য বাবা বললেন, উনকে সাথ रहते भी मन को मेरे में लगाओ। মিত্র সম্বন্ধীদের সাথে থাকেও বুদ্ধিটাকে বাবার সাথে লাগাইতে লাগবে। मन मना भव का मंत्र सदा याद रखो। मन मना भव, মনটা সব সময় বাবার মধ্যে লাগিয়ে রাখো। तुम नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। নতুন দুনিয়াতে তোমার উঁচু পদ হবে। गीत है आज के गीत, तूने रात गवाई सोई दिवस गवाई खाए। हीरे जैसा जन्म मिला कौड़ी जैसे बिक जाए। জীবনটা আমাদের অনেক মূল্যবান,
হীরে তুল্য, কিন্তু মানুষ খায় আর শুয়ে গাওয়াই দিতেছে। এই জন্য বাবা বলেন কৌড়ির ভাবে, কৌড়ির মূল্য যেন জীবনটা না বিকি যায়, মানে কৌড়ির মতন জীবনটাকে আমরা শেষ না করে দিই। ओम शांति। जैसे बाप को सभी शास्त्रों का सार समझाए, बाबा तो सब शास्त्रेर सारगुला आमादेरके एखन बुझाচ্ছে, वैसे इन गीत का भी सार तुमको समझाते हैं। गीतेर रहस्य की ओटाओ बुझाते। यही सबका रूहानी बाप है। रूहानी बाप को ब्रह्मा तन में बैठ समझा रहे हैं। रूहानी बाप आत्मार जे बाबा से ब्रह्मा शरीरे बसे आमादेरके बुझाচ্ছেন। बाप समझाते हैं, हे बच्चों, तुम जानते हो हमारा हीरे जैसे जन्म बन रहा है। बाप के पास आते हो हीरे जैसे जन्म बनाने। हीरे जैसे जन्म कहा जाता है स्वर्गवासियों की। हीरा मतन जीवन थाकबे जारा स्वर्गवासी थाकबे। कौड़ी जैसे जन्म नरकवासियों का है। तुम संगम युग को भी जान चुके हो। এই সময় চলছে, বর্তমান সময় চলছে संगम युग। हम सभी संगम युगवासी हैं। আমরা হইলাম संगम युगवासी। यह संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है। এই संगम সময়টা সবার জন্য কল্যাণকারী। तुम मुसाफिर नहीं हो, तुम आकर जाते नहीं हो। बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया में आकर फिर लौट जाता हूँ। तुम जानते हो यह सेवा करने वाला सिर्फ एक मुसाफिर है। एक मुसाफिर हुईलेन बाबा, जो आकर हम बच्चों की बड़ी सेवा करते हैं। ऐसे सेवा और कोई कर न सके। की सेवा करे बाबा, আর যিনি কেউ করতে পারবে না। सेवा के लिए ही पुकारते हैं। आकर पतित दुनिया को पावन बनाओ। बच्चों की सेवा में आया है, क्योंकि बच्चे बहुत दुखी हैं। पुकार भी रहे हैं, हमारे दुख हरो, शांति दो। दो चीज हमेशा याद रहती है, सुख और शांति। यहाँ दुख और अशांति है। এই জন্য মানুষ কি চায়? সুখ আর শান্তি চায়। তো সেই সুখ শান্তি তো সুখ শান্তির সাগর দ্বারাই আমরা প্রাপ্ত করতে পারব। अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। भक्ति मार्ग যখন खत्म হয়ে যায় তখন बाबा আসছেন। कलयुग का अंत माना भक्ति नीचे उतरती जाती। भक्ति नीचे नामছে। तुम्हारी सीढ़ी तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती। भक्ति नीचे नामे আর আমাদের হয়ে যায় চড়তি कला, মানে আমরা উপরে যাচ্ছি। तुम ऊंचते ऊंच पद पाते हो, फिर वह प्रारब्ध का सुख कम हो जाता है। भक्ति भी भारत में जितना होती और कहीं नहीं। भक्ति पूजा प्रबंध भारते बेशी है, अन्य कोनो जगह तो प्रांते है ना। आधा कल्प भक्ति चलती है जब से द्वापर शुरू होता है। द्वापर युग आसलेई दापड़े चक्रे पड़े मानुष भक्ति पूजा पाठ शुरू कर दिल और दूसरे धर्म स्थापन होना शुरू होते हैं। अन्य धर्म पितारा आसेओ धर्म स्थापन करे देन। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है और दूसरे धर्म भी शुरू होते हैं। इतनी भक्ति और कोई कर नहीं सकते। आधा कला भक्ति चलती है।
यह भी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप जो सबको, खास भारत को सद्गति देते, स्वर्ग का मालिक बनाते, वही दूर देश का मुसाफिर यहाँ आया हुआ है। बच्चों को फिर से स्वर्ग की बादशाही देने, केन आसছে स्वर्गेर बादशाही देवार जन्य। वर्षा भी कितना जबरदस्त थे, बाबा के जे पावना ओगलाओ खूब जबरदस्त, खूब प्राप्ति, परंतु एक भी बात किसी की बुद्धि में नहीं बैठती। भारत में भक्ति कितनी करते हैं, कितने मंदिर है, भारत खंड में तो ढेर मंदिर है। अभी तुम जानते हो यह मंदिर किसके मंदिर हैं? पहले पहले तो शिव बाबा का मंदिर बनता है, फिर बनाते हैं देवताओं के। वह मन भी तुम्हारे समान सामने खड़े हैं, जे मंदिर गुला हमारे सम्मुखे। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते, दूसरे तरफ शिव बाबा तुमको पूज्य बनाते हैं। वह यहाँ आए हो पूज्य देवता बनने, जो भी देवताओं के पुजारी हैं, वास्तव में वह भी आकर यहाँ ब्राह्मण बनेंगे। धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। सभी इकट्ठे तो पढ़ ना सके, सबाई एक साथे पढ़बे ना, आस्ते आस्ते करे वृद्धि होबे। केन कि एखानेও যদি হুড়মুড় করে পড়াশুনো করে দেয় তো এখানে হুড়মুড় করে পড়াই পথ জন্যই ঝগড়া হওয়া শুরু হয়ে যাবে। এখানে আস্তে আস্তে পড়বে, আস্তে আস্তে করে ওখানে জনম বাই জনম আসতে থাকবে। तो ये जन्नो आदि मध्य अंत की नाले सुनाते हैं, जिससे मनुष्य स्वर्ग के मालिक बन जाते, स्वर्गेर मालिक हुए जाए। तो स्वर्गे के থাকবে, देवी देवतारा থাকবেন। আর देवी देवताদেরকে এত উচ্চকে বানাইলো, সে হইল সব থেকে উচ্চতে উচ্চ, শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ আমাদের अनादि पिता। वही बाबा कलब कलब आकर हमको रौरव से रंग से राव बनाते हैं। भारत अब रंग है, फिर दूसरे जन्म में क्या बनना है? तुमको सब साक्षात्कार हुआ, विनाश का भी साक्षात्कार किया, स्थापना का भी किया। भगवानोवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, परंतु दान पुण्य करने से कोई भी अल्पकाल का सुख मिलता है। दान पुण्य यदि एखाने कलिजुगे करे मानुष तो अल्प समय जन्य तार फल पाए। राजाओं के पास जन्म ले फिर फट से मर जाते हैं। केउ केउ राजा बाड़ीते जन्म निल और जन्म नीतेও देरी ना, किछुदिनेर मध्य शोना गेल माराओ गेल। कोई गर्भ में भी मर जाते हैं, कोई लुल्ले लंगड़े काने बन जाते हैं। एटाও হইল কর্মফল, যে লুলা লংড়া কানা খোড়া এগুলা নিজে বনে না, এগুলাও হইল কর্মফল। जैसे कर्म करते वैसे पद पाते, যেমন কর্ম করে সেই অনুযায়ী पद पाए। अब तुमको तो राजाओं का राजा बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम बलिहार जाएंगे, तो जरूर राजाई भी तुम पाएंगे। बाबा ऊपरे बाबा आसले जे बलिहार जाबे तो राजपथेও से पाबे। भारत को महादानी खंड कहा जाता है। भारत महादानी, सबाई के दान दिए सबाई के उद्धार करे भारत। पुण्य भूमि, भारत भूमि रे तो महिमा, भारत देश महान।
যে ভারত ভূমিতে আসেন শিব ভগবান। এত পুণ্য ভূমি, যে ভূমির আমরা এক একজন অবতার, অর্থাৎ সব এই সৃষ্টি মঞ্চে আমরা অবতরিত হয়েছি পাট বাজানোর জন্য। তো ভারত দেশের মহিমা সাথে সাথে ভারতবাসীরও মহিমা। ভারত পুণ্য ভূমি হতে পারে, তো ভারতে যে যারা জন্ম নিয়েছে তারাও पुण्य आत्मा। यहाँ दान पुण्य बहुत करते हैं, वह फिर शुरू होता है भक्ति मार्ग में। और बाप तुमको 21 जन्म के लिए दान देते हैं। बाबा 21 जन्मर जन्म আমাদেরকে दान दिए दीछे। अब तुम बाप पर बलिहार जाते हो। आगे तो हमरा बाबार ऊपरे बलिहार जाई, तन मन धन सब कुछ दे दिया। अब बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो। बाबा के দিয়ে দিল, বাবা তোমার তন তোমার মন তোমার ধন তুমি সামলাও, আমিও তোমার। তো বাবা কি বললো, ঠিক আছে তুমি এখন ট্রাস্টি হয়ে যাও। ट्रस्टी होकर रहो, अपना घर बार संभालो। सब शिव बाबा का है। দিয়ে দেওয়া মানে কি, সব কিছু তো দিয়ে দেওয়ার জন্য বাবা বলে নাই, তুমি মন থেকে কি করো, সব কিছু বাবার মনে করো। আমার ধন আমার মন আমার তন আমার সংসার জায়গায় সব কি ইউজ করো, सब किछुते बाबा यूज करो। सब शिव बाबा का है, मैं आपका हूँ, आपको ही याद करता हूँ। दिल से सरेंडर करते हैं। बाप कहते हैं भल महल में रहो, घूमो फिरो मौज मनाओ, सिर्फ मुझे याद करो। बाबा किछु माना करछे ना, কারো যদি মহলে থাকতে ইচ্ছা করতেছে থাকো, सिर्फ मुझे याद करो, खाली बाबा के स्मरण करे থাকো। तुम बहुत सुखी रहेंगे। तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, इस योग बल से तुम विक्रमजीत बनेंगे। बाबा के স্মরণের মাধ্যমে আমরা विक्रमকে जीत করতে পারবো। बाप की याद से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाबार স্মরণে থাকলে আমরা বিশ্বর মালিক হতে পারবো। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रीत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणार जन्य सार हईल राजाई पद पाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। राजाई पद यदि लागे तो बाबा की बोलें पूरा भावे सम्पूर्ण भावे बाबार उपरे बलिहार जाओ। तन मन धन सब संपूर्ण, तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना। विक्रमजीत बनने का पुरुषार्थ करना। माथार उपरे अनेक विकर्म आछे, सेगुलाके जय करार जन्य पुरुषार्थ करते होबे। नम्बर दूसरा, याद में ही कमाई है। बाबा स्मरणे थाकेई आमादेर कमाई आछे, इसीलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करो। सब समय बाबार स्मरणे थाकार जन्य पुरुषार्थ करो। ऐसे रूहानी फूल बनना है। एवं एक फूल तैयारी होते बोलो रूहानी फूल। जेमन जिस्मानी फूल थाकले तो कि हय सब समय मंदिरे अर्पण है, तो बाबा बोलें तुम्हाके रूहानी फूल बनते होबे। जो फूलों की दुनिया का मालिक बन जाएंगे। फूलों की दुनिया जेखाने कोनो काटा होबे ना, कोनो किछु फूल सुख देय और काटा दुख देय। अंदर में कोई भी कांटा न रहे, भीतरे कोनो जनी कांटा जातीय जिनिस ना थाके। कांटा की करे दुख देय, तो स्वभाव एमन कांटा मतन जनी ना हय। वरदान,
त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह। त्रिकालदर्शी तीनों कालेर ज्ञानटा बुद्धि में राखे स्थित थाके सदा अचल और साक्षी रहने वाले। अचलो থাকতে লাগবে, चलयमान परिस्थिति आसबे लेकिन अचल থাকতে লাগবে। साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प हर कर्म करो। त्रिकालदर्शी स्थितिते थाके सब काजकर्म करते बोलें। हर कर्म करो और हर बात में देखो, प्रत्येकटा कथाते देखो। यह क्यों क्या यह क्वेश्चन मार्क न हो। केनो कि एगुला बोले ना, এটা হলো क्वेश्चन मार्क। सदा फुल स्टॉप, सब समय फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू, कोनो नतून ব্যাপার ना। हर आत्मा के पाठ को अच्छी तरह जानकर पाठ में आओ। सबार पाठटाके जाने तारपरे कर्मे आसो। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे पन की समानता रहे। आत्मादेर सम्बन्ध सम्पर्क आस्ते न्यारे और प्यारे थाकार जन समानता हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीर आत्मा की निशानी। नंबर 1 तकदीर आत्मार निशाना। स्लोगन, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। कठोर संस्कार, खूब शक्त संस्कार बोले ना, एटार संस्कार और चेंज होबे ना, खूब शक्त संस्कार, स्वभावटा खूब शक्त। तो बाबा की बोलें, सहनशीलतार गुण धारण करो तो कठोर संस्कार शीतल हो जाए। जेटा कठोर मने करतेছি আমরা সেও পরিবর্তন হয়ে যাবে। কখন? যখন सहनशीलतार गुण धारण করবে, सहनशीलतार अवतार মনে করবে, सहन शक्ति देवी মনে করবে, তখন কি হয়ে যাবে? কঠোর সংস্কারও পরিবর্তন হয়ে যাবে। दीदी मनमोहिनी जी विशेषता के 24 नंबर विशेषता, अपकारियों पर भी उपकार की भावना। जरा अपकारी तार उपरे वो उपकारी भावना। कभी कोई यज्ञ की वह बड़ों की इंसल्ट करता है। केउ कखनो बाबार यज्ञेर बा यज्ञेर कोनो बड़ोदेर कोनो कथाते इंसल्ट करछे। कोई उल्टा सुल्टा बोलता तो भी दीदी कहती, बाबा ने सब पर उपकार किया, उसका दोष नहीं, इसीलिए कभी भी बदला लेने का ख्याल नहीं रखना है। कारो दोष नाई, निर्दोषी और कोनो समय बदला नेवार भावना जनी ना थाके। दूसरे को बदलने के बजाय अन्य परिवर्तन हो तार अपेक्षा करतेছেন, ओ जगह की करते होबे स्वयं ही भलाई, खुद को बदल लो, इसमें ही भलाई है। নিজেকে পরিবর্তন করো না, অন্যের চক্করে না পড়ে নিজেকেই পরিবর্তন করে নাও, তার মধ্যেই তোমার উন্নতি আছে। दीदी ऐसे अपकारियों पर भी उपकार की भावना रखती थी। जरा अपकारी तार उपरेও उपकारी भावना दीदीर छिलो, तखने दीदी दीदी हইলেন। ओम शांति।